میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو نے اور تیرے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا، اس لیے اب تو قاصد بیل اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو اسفل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جناب، ہم سب کے لیے بھائی سے برکت ہو۔ آمین۔ ایک دوسرے کو کہو کہ تم بدل سکتے ہو، تم بدل سکتے ہو۔ ایک دوسرے کو اگر بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ تم بدل سکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے نبوتی طور پر اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کہا ہے، یا آپ کا کوئی بزرگ ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کی ممی ہے، آپ نے اس کو نبوتی طور پر کہا ہے کہ تم بدل۔ ہاللیلویا۔ اور آپ دیکھو گے کہ وہ بھائی کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ میں بدل سکتا ہوں، مطلب آپ چیزوں کو بدل سکتے ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام خدا میں جو ہم نے پڑھا، یہ خدا کا بندہ ایلیا نبی ہے، اور ایلیا نبی اخیب کے سامنے، اور اخیب ایک بادشاہ ہے، اور آپ کو دھیان سمجھنا ہے، ایک نبی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، اور جو باتیں وہ اس سے کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تو اسرائیل کو ستانے والا ہے، تو نے اسرائیل کو یعنی میری قوم کو ستایا ہے۔ پر آپ کو دھیان سمجھنا ہے، ایلیا نبی نے کہا کہ میں نہیں ستانے والا بلکہ ستانے والے تم لوگ ہو، کیونکہ تم نے اور تمہارے گھرانے نے اور ساری قوم نے کس کی پرستش کی؟ بال کی پرستش کی۔ آج ہمیں دھیان سمجھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد بال ایک دیوتا تھا، اور آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ یہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہی دیوی دیوتا ہمارے ارد گرد کام کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا کہ ایک طرف ایلیا نبی اکیلا نبی تھا اور دوسری طرف 450 نبی تھے۔ اس کا مطلب کہ شیطان کا جو نیٹ ورک تھا، شیطان کا جو کام تھا، وہ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ ایک طرف مسیح قوم اور دوسری طرف بت پرست قوم، اور اتنی وہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی کہ خدا کے نبی کو پھر جانا پڑا اور اسے سٹینڈ لینا پڑا، اور اس نے سب کو بلایا کہ آؤ تم سب مل کر، اور ان سب کو جب بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد آپ کو دھیان سمجھنا ہے، اور ان سب سے کہا کہ اگر خداوند ہی خدا ہے تو تم آج اس کے پیر ہو جاؤ، اور اگر بال دیوتا ہے تو بال کی پرستش کرو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے منہ بند رہے، کوئی بھی شخص بول نہ سکا، اس لیے کہ بولنے والا ایلیا تھا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ چیزوں کو بدل سکتے ہو، جیسے ایلیا نے بدلا، جیسے ایلیا نے آسمان سے آگ، اس سے پہلے کہ ایلیا آسمان سے آگ کو نازل کرتا، اس سے پہلے کہ ایلیا لوگوں سے بات کرتا، اس سے پہلے کہ ایلیا بادشاہوں کے سامنے کھڑا تھا، ایلیا پہلے خدا کی حضوری میں کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر خدا کا مسح تھا، اور جب مسح سے بھرا ہوا انسان لوگوں کے سامنے کھڑا تھا تو لوگ تبدیل ہوتے ہیں۔
हालेलुया। फिर लोग बरकत पाते हैं, फिर लोग बुतों को छोड़कर खुदा को मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की हजूरी में बिना खड़े ही प्रचार करेंगे, कलाम सुनाएंगे, तो लोग कभी तब्दील नहीं होंगे और कभी मौजज़ात भी नहीं हो सकते। मौजज़ात तब होते हैं जब खुदा के खादिम खुदा के सामने खड़े होते हैं। हालेलुया। आप बदल सकते हो। आप अपने घराने को बदलना चाहते हो तो आपको पहले खुदा की हजूरी में खड़ा होना पड़ेगा भाई। हालेलुया। उसके सामने किसी की जरूरत नहीं हुई एलिया के सामने कि कोई शख्स एक हरफ भी अपने मुंह से निकाल सके। हालेलुया। आज लोग बरकत चाहते हैं, आज सारे लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर आज दुआएं लोग करते हैं कि खुदा आज वही आग भेज, एलिया वाली आग। भाई एलिया खुदा की हजूरी में खड़ा था, पहले हजूरी बाद में आग भी आ जाएगी आपके ऊपर। हालेलुया। आज हमें इस बात को ध्यान से बड़े इत्मीनान से समझने की जरूरत है। आप बदल सकते हो। हमें आपको मालूम नहीं है कि आप जिस भी आप जरूरी नहीं है कि आप कलाम सुनाओ, जरूरी नहीं है कि आप घर घर जाकर दुआएं करो, जरूरी ये भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ दुआ करो। आपको जहां पे खुदा ने रखा हुआ है वहीं पे खुदा का काम करो। अगर आपको खुदा ने बिजनेसमैन बनाया है तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करके वहां पे बिजनेस करो। और आपका बिजनेस इससे पहले कि आप अपने बिजनेस पे जाओ, इससे पहले कि आप अपना कारोबार करो, खुदा की हजूरी में 2 घंटे गुजार कर, 4 घंटे गुजार कर, 6 घंटे गुजार कर जब अपने बिजनेस को हाथ लगाओगे, कलाम में लिखा कि यूसुफ जिस चीज को हाथ लगाता था उस काम में बरकत आ जाती थी। हालेलुया। यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता था, जिस भी काम को हाथ लगाता था उस काम में बरकत आ जाती थी। आपको ध्यान समझना है कि यूसुफ का बाप यूसुफ से प्यार क्यों करता था? क्योंकि उसका बाप याकूब था और याकूब बड़ा अक्लमंद था और ये बात समझ रहा था कि यूसुफ के हाथों में बरकत है, इसलिए उसे वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। आपको बताना चाहता हूँ, जो जिन बच्चों के ऊपर अनॉइंटिंग होती है, जिन बच्चों के ऊपर मसादत है, उसका बाप उस बेटे को बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और याकूब इस बात को जानता था कि मेरे बेटे यूसुफ के ऊपर बरकत है, मसा है, क्योंकि वो जिस काम को हाथ लगाता था उस काम में। हालेलुया। और गैर कौम के लोग भी इस बात को समझ गए थे। जब यूसुफ गुलामी में जाता है, पोतीफर के घर में जाता है, तो पोतीफर को भी समझ आ जाती है भाई इसके कोई तो कुछ तो है, कुछ तो मसला है। ये बंदा जिस भी काम को हाथ लगाता है उस काम में पता नहीं कौन सी चीजें, पता नहीं कौन सी बला है, ये पता नहीं कौन सी, क्योंकि वो गैर कौन से था, वो इस तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि उसके जो अल्फाज होंगे वो कुछ और तरह के, पता नहीं इसके ऊपर पता नहीं क्या चीज है। और मैं बताना चाहता हूँ इसके ऊपर खुदा की कुदरत है। जिसके ऊपर खुदा की कुदरत होती है वो जिस भी काम को हाथ लगाएगा वो काम बढ़ता जाएगा। हमें आप अगर डॉक्टर है ना भाई, तो आप वहां पे भी काम कर सकते हो यीशु मसीह का। वहां पे भी जाहिर होगा, वहां पे भी जाहिर होगा। मैं एक बेटी को जानता हूँ, अफ्रीका में एक बेटी रहा करती थी, हिस्ट्री में उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे पिछले साल एक बीमारी आई जिसका नाम कोरोना था, ऐसे ही एक बड़ी बीमारी को जो अफ्रीका में आई, वो बीमारी इतनी बीमारी फैल गई कि उस बीमारी वाले लोगों को कोई भी शख्स उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करता था, उनका इलाज नहीं करता था। एक बेटी, उसने फैसला लिया, वो मेडिकल फील्ड में थी, एक डॉक्टर थी, उसने कहा मैं इनका इलाज करूंगी, क्योंकि उसका जो भी इलाज करता था उन मरीजों का, उस शख्स की डेथ हो जाती थी, वो डॉक्टर मर जाते थे।
लेकिन वो जो मरीज होते थे वो सिर्फ पढ़ते रहते थे। ये कि बड़ी ये अजीब सी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर मर जाते थे लेकिन मरीज तड़पता रहता था। उस डॉक्टर ने फैसला लिया, वो एक मसीही लड़की थी, उसने डिसीजन लिया कि मेरे ऊपर मसा है, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, मैं इन सब को बचाऊंगी। उसके मुंह से बस एक ही अल्फाज निकलता था, मैं इन सबको। और ऐसा ही हुआ, उसने डिसीजन लिया, उसने जाकर उनका इलाज शुरू किया। वो सबको तो बचा पाई, फिर अपने आप को बचा, क्योंकि उसने एक ही बात कही थी कि मैं इन सबको, अपने लिए उसने कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं, आज आपके लिए ये मैसेज लेकर आया हूं कि आप बदल सकते हो। यू आर द चेंजर। हालेलुया। इस मुल्क का बदलाव मैं बताना चाहता हूं कि अगर एलिया उस टाइम ना आता तो आपको बताना चाहता हूं कि कितने खानदान थे जो खुदा को मानने वाले थे, और सारे खानदान कहां पे थे? बाल देवता के मंदिर पे थे। और आज आपको ये भी बता दूं कि बाल देवता के मंदिर पर सिर्फ पूजा नहीं होती, वहां पे ज़नाकारी, हरामकारी ये पूजा का हिस्सा थी। ये इबादत उनकी इबादत का एक हिस्सा था कि जितनी भी गलत हरकतों से कातिल, ज़नाकारी, हरामकारी और छोटे बच्चों को वहां पे ज़िबा किया जाता था, ये सारी इबादत का हिस्सा था। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं कि बाल देवता की, और आप अंदाजा कर लो कि ये बाइबल के कितना खिलाफ हो रहा था। और यहूदी इस बात को समझते थे, लेकिन समझने के बावजूद वो लोग बाल की परस्तिश कर रहे थे। इसीलिए फिर एलिया को आना पड़ा। आज भी अपने इर्द गिर्द देख लो कि कितने चर्च भरे होते हैं, कितने मैंने कहा चर्च भरे होते हैं। और इन्हीं मसीहों को अगर आप देखोगे तो आपको यहां से ज्यादा मसीह आपको मंदिरों पे मिलेंगे, यहां से ज्यादा मसीह लोग आपको और दूसरी इबादत गाहों में मिलेंगे। आपको मसीह इस वक्त न जाने कौन से इंटरनेट, कौन से कैफे पे आपको मिलेंगे, सैर गाहों में आपको मिलेंगे, पार्कों में आपको मिलेंगे, पर मसीही चर्च में नहीं मिलेंगे। वो पार्क उनके लिए बाल देवता से फट रही है। हालेलुया। वो बाल देवता से कुछ छोटी पार्क नहीं है, वो उससे भी बड़ी मैं समझता हूँ। हालेलुया। और एक सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्क में नहीं जाओ, आप घूमने नहीं जाओ, आप घूमने जाओ, पार्क में जाओ, पर संडे को खुदा की हुजूरी में आओ। हालेलुया। आपको मना नहीं किया जा रहा, आपको इंटरनेट पे जाने से भी मना नहीं किया जा रहा, जाओ, पर वो इंटरनेट आपका देवता ना बन जाए। उस इंटरनेट से यीशु का जलाल क्यों नहीं जाहिर हो रहा? आपके उस फेसबुक से, आपके उस व्हाट्सएप से, आपके उस यूट्यूब से यीशु मसीह का जलाल क्यों नहीं जाहिर हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो बाल देवता है, और उस बाल देवता को निकालने के लिए एलिया चाहिए। हालेलुया। पर एलिया सोया हुआ है, एलिया को जागने की जरूरत है, एलिया को उठने की जरूरत है, ताकि उस व्हाट्सएप से, उस मैसेंजर से यीशु का जलाल क्यों नहीं जाहिर हो रहा? आप जलाल जाहिर कर सकते हो, आप तब्दील कर सकते हो। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है कि आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज किसकी जिंदगी बदलने वाला है? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हालेलुया। चर्च में सब कुछ चल रहा है, कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है, गाने वाले, बजाने वाले, कैमरामैन को आप उससे बात करके कि मेरा गीत रिकॉर्ड कर लिया करो, मेरी मीटिंग लीड को रिकॉर्ड कर लिया करो। अपने उन जो आपके अपने खुद के अकाउंट है उनसे उनको अपलोड करो। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कि आप चर्च के जो अकाउंट है उनसे काम करो, आप अपने अकाउंट से क्यों नहीं काम कर रहे? हालेलुया। आप घर में बैठ के कुछ गा सकते हो, खुदा की कुछ गीत गा सकते हो, कुछ वर्शिप कर सकते हो, अपने बच्चों को प्रेयर के लिए, अपने बच्चों की छोटी प्रेयर के छोटे क्लिप व्हाट्सएप पे करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया।
आपके पास अक्सर मैसेज आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटी छोटी वो दुआएं गा रहे होते हैं और वो कलाम भी सुना रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए ट्रेन नहीं करेंगे। मैंने इस साल अपने बेटे को, मैंने उसका एडमिशन मान लो समझो, मैंने टीचर से बात कर ली है कि वो आने वाले 2022 में आपको इंग्लिश में मैसेज सुनाता हुआ नजर आएगा। आमीन। मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने इस साल अपने बेटे के लिए एक टीचर हायर कर ली है, उसे मैं फीस पे करूंगा ताकि वो मेरे बेटे को अगले साल इंग्लिश में मेरा बेटा कलाम सुना सके। मैं इस बात के लिए पैसे पे करूंगा पूरा साल। हालेलुया। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप बदल सकते हो चीजों को, आप चीजों को बदल सकते हो, आप घर को बदल सकते हो। हालेलुया। आज लोगों को सिर्फ आग चाहिए, आग चाहिए भाई। आग जिसके पास है ना, उस आग वाले मसीहा के पास जाना पड़ेगा आपको, और वो मसीहा यीशु मसीह है। उसके पास जाने के लिए कोई भी राजी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बरकत तो किसी और का हिस्सा होगा, क्योंकि आप उस मसीहा के पास तो जाते नहीं है। मेरे ख्याल में इस चर्च में गाने वाले बथेरे हैं, साथ बजाने वाले बथेरे हैं, पर किसी का अपना पर्सनल अकाउंट नहीं होगा कि वहां पे उसके गीत हों। मैं आपके लिए विजन रखता हूं कि पूरी दुनिया में जाकर आप गाएंगे, पूरी दुनिया में आज जाके आप बजाएंगे। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कितनी बड़ी रोया रखते हो आप अपने अंदर, पर मैं आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए रोया रखता हूँ कि आपके बच्चे इस मुल्क में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर प्रचार करेंगे। आमीन। उन 450 नबियों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, आपका बच्चा बाहर गली में अगर खेलने के लिए जाए और कोई बच्चा उसको पत्थर मार दे और उसका सर फट जाए, अब मुझे बताओ आपका जो सर से लेकर पैरों तक ना, आपका जो खून है ना, वो 100, अगर उसकी स्पीड 100 स्पीड है ना, वो 200 की स्पीड पे वो गर्दिश करना शुरू कर देगा, है ना। लाल पीले हम हो जाते हैं कि यहाँ पे आज ओनरा मुंडा नहीं तो यहाँ पर जैसी नहीं, है ना। पर मैं आपको बता रहा हूं, आपके कितने बच्चे हैं जिनको शैतान हर रोज मारता है। हर रोज इब्लीस ने आपके बच्चों को जकड़ के रखा हुआ है, उन अड्डों के ऊपर उनकी वो अपनी प्रस्तश करवा रहे हैं उनसे। पर किसी भी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रात को उठकर खड़ा होकर वो खुदा की हजूरी में प्रस्तश कर सके ताकि उसके बच्चे छूट सके। आप उसे थप्पड़ मारो, आप उसे डांटो, आप कुछ भी कर लो, वो बच्चा कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आप उसे जिस्म की ताकत से लाना चाहते हो, आप उसे अपने बदन की पूरी ताकत से लाना चाहते हो, क्योंकि ये मसला रूहानी मसला है, तो ये जिस्म की ताकत से नहीं हल होने वाला। ये मसला रूहानी है, तो अब ये रूह से हासिल होगा। आपको रूह में दुआ करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं अगर अभी पूछना कितने लोग रात को 12 बजे उठ के दुआ करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। आप उठना, हाथ ही शायद ना उठे। हम चाहते हैं हमारे बेटे पास्टर बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे वर्शिपर बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुदा का काम करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने, पर उस डॉक्टर के पीछे प्रेयर करने वाला कोई नहीं है। उस इंजीनियर के पीछे प्रेयर करने वाला कोई नहीं है। उस खातम, उस नबी के पीछे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले यिर्मयाह के लिए दुआ की कि खुदा उसके ऊपर यिर्मयाह वाला मसा हो, पर उसके पीछे एक शख्स की जरूरत है
एक पर्सन की जरूरत है कि जो यिर्मयाह के पीछे रात खड़े होकर खुदा की हजूरी में दुआएं करने वाला हो। हालेलुया। एक और बेटे का नाम हमने रखा है, उसका नाम तीमुथियुस रखा है। हालेलुया। एक का नाम मायून रखा है। हालेलुया। तो ये नाम बड़े बड़े रखे हैं हमने, पर इन नामों के पीछे बड़ी बड़ी प्रेयर्स भी जरूरी है। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आपके बेटे की जिंदगी में खुदा काम करेगा, उसे बदलेगा। आप खुद अपनी आंखों से उसे बड़ी जगह पे देखोगे, ये मेरा ईमान है। आमीन। हालेलुया। पर आज इससे पहले कि आसमान से आग नाज़िल हो, एलिया को खुदा की हजूरी में खड़ा होने की जरूरत है। आमीन। खुदा फरमाता है एलिया कहाँ है, पर एलिया आगे से जवाब दे कि एलिया हाजिर है। हालेलुया। मैं आपकी रहनुमाई करा, खुदा आपको आवाज देगा। आमीन। जैसे जब सैमुअल को खुदा की आवाज आती थी और सैमुअल खुदा की आवाज को पहचान नहीं पाता था, आपको खुदा की आवाज आ रही है कि एलिया कहाँ है, तो आप खुदा से कह सकते हो, खुदा एलिया हाजिर है। एलिया, कई दफा हम दुआएं करते हैं कि एलिया के खुदा कहाँ है, पर खुदा यहाँ है। एलिया कहाँ है? हालेलुया। खुदा यहाँ है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। वो तो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। क्या एलिया इतनी प्रेयर कर रहा है? आपको मालूम है हमारे खिलाफ कितने जादूगर, कितने बुतप्रस्त लोग खड़े हैं, वो दुआएं करें, वो चिल्ले करें, आपको अंदाजा नहीं है। हम रात को सही जोर जोर से खराटे मार के सोते हैं, लेकिन वो चिल्ले पे बैठा हुआ है और वो लगातार दुआ कर रहा है, लगातार अपनी पूजा कर रहा है, ताकि ये खानदान, ये चर्च, ये कलीसिया बर्बाद हो जाए। उसे मालूम नहीं है कि यहाँ पे एलिया खड़े हैं। आमीन। उसे मालूम पड़ना चाहिए। आप जब रात को दुआ में बैठो तो उस शैतान को, जो आपके घराने को, आपके खानदान को, बातों से काम नहीं चलेगा। मैं ये बता दूं, कई दफा लोग ना बड़े जोश में बड़ी बातें कर देते हैं। भाई ये रूहानी मसले हैं, जोश में जो मर्जी कर दो, कुछ नहीं होगा। रात को बैठना पड़ेगा। मैंने बड़े लोग देखे हैं, ये बड़ी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि आप जोश में बहुत कुछ कह देते हो, लेकिन रात को बैठते नहीं। आज असी भी मसीह है, हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के बेटे हैं। हमें क्या होगा? हम खुदा के बेटे और बेटी हैं। आप ही को कुछ होने वाला है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं, पर आप रात को बैठते नहीं हो। जो बैठेंगे वो बातें करें या ना करें, शैतान कुछ नहीं कर सकता उनका। हालेलुया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने खुदा की हुजूरी में बैठना है। वो क्या करते हैं, वो जो मर्जी करें, मुझे इससे मतलब नहीं है वो मेरे बारे में कितनी पूजा करें, कितने प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है उनका हर प्लान मेरे फायदे के लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है उनका हर तीर मेरे लिए फायदेमंद होगा, उनका हर प्लान मेरे लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया। एलिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया को खुदा ने खानदानों को बचाने के लिए भेजा था। एलिया एक जबरदस्त ऐसा खादिम था जिसकी वसीला से बड़े खानदान, बड़े घराने बचाए गए थे। और जब ये सारे नबी, 450 नबी इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद
एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि खुदा की परस्तिश नहीं हो रही थी, खुदा की इबादत नहीं हो रही थी, और खुदा की इबादत ना होने की वजह से खुदा का मज़बा ढा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में कोई मज़बा नहीं है? मैं अपनी सारी टीम से बता रहा था, खुदा उस बंदे से बात करता है जिसका मज़बा होता है, जो खुदा के लिए मज़बा बनाए और उस पे जाए, खुदा उससे बात करता है। खुदा किसी और से कभी बात नहीं करता, और खुदा जब भी बात करेगा आपसे, आप जो आपने खुदा का मज़बा बनाया हुआ ना, वहां पे खुदा आपसे बात करेगा। इसका मतलब कि कितना जरूरी था। फिर लिखा कि जब वो बाल देवता जितने भी थे और उनके जो प्रस्तिश करने वाले थे 450 नबी, उन्होंने दुआएं की, इबादत करनी शुरू कर दी, पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर लिखा कि एक कुर्बानी रखी थी, उन्होंने उस पे आग लानी थी, लेकिन आग आ नहीं रही, माचिस से आग नहीं लगानी थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बाल देवता सच्चा है तो इससे इस कुर्बानी को जलाकर तुम्हारा देवता भस्म करे, और इसे आग देनी नहीं है, तुम्हारा देवता इसे आग दे, क्योंकि तुम्हारा देवता कौन सा है? आग का देवता, सूरज देवता। हालेलुया। उनका देवता भी सूरज देवता था, लेकिन आसमान से कोई सूरज आग नहीं ला रहा। सच्चा होता तो आग आती ना। फिर बात अब बारी थी एलिया की, और एलिया ने अपने लोगों को कहा कि मेरे साथ आओ, आओ मेरे खुदा के लोगों, मेरे साथ मिल जाओ। जब वो सारे लोग साथ मिले तो लिखा उन्होंने मिलकर खुदा के मज़बा को फिर से तमीर किया, फिर से उसे बनाया। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा के मज़बा को फिर से, जो ढा दिए गए हैं, उन मज़बों को बनाएं। आपके घर में दुआ करने का एक मज़बा होना चाहिए। बेशक आपके घर में एक ही रूम क्यों नहीं है, उस रूम में कोई थोड़ी सी तो जगह होगी ना, कोई 2 फुट की। आपने जहां पे बैठना है ना, आप जहां पे खड़े होते हो वहां पे 2 फुट की जरूरत होती है। जहां पे आप सजदा कर सको वो 2 बाई 3 फुट, इससे ज्यादा जगह की आपको जरूरत नहीं है। और घर में इतनी जगह होती है कि नहीं होती? आपके घर में इतनी जगह होनी चाहिए जहां पे सिर्फ आप क्या कर सको। और मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, उस जगह को बनाओ जहां पे आप इबादत कर सको। वो जगह आपका हल उसी जगह में, आपकी बीमारी का भी हल उसी 2 फुट के मज़बा पर है, आपकी प्रॉब्लम का हल उसी 2 फुट की जगह में है। हालेलुया। आपकी बरकत का राज उसी 2 फुट की जगह में है, आपके बिजनेस के बढ़ने का राज उसी 2 फुट की जगह में है। और जब एलिया ने मज़बा बनाया, और मज़बा बनाने के बाद कुर्बानी रखी, पानी डाल दिया और दुआ की और हाथ उठा के खुदावंद रब्बुल अरबाज, आज ऐसा ही हो जाए कि एलिया का खुदा जिंदा है। हालेलुया। आसमान से आग नाज़िल हुई। हालेलुया। और लेकिन आसमान से आग नाज़िल हुई और उस पानी को भी चट कर गई और उस कुर्बानी को भी चट कर गई। हालेलुया। ये फायदे होते हैं खुदा की हुजूरी में बैठने के। कोई 2 घंटे दुआ नहीं की, एक दफा हाथ उठाए और कहा आज जाहिर हो जाए एलिया का खुदा जिंदा है। हालेलुया। हमें आज से अपने आप को ट्रेन करना है कि हम खुदा की हुजूरी में बैठ सकें। हमें जब आप खुदा की हुजूरी में बैठोगे, मेरा ये बिलीव है कि आपके काम सफल होंगे, आपके काम जबरदस्त रीति के साथ होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के से आपकी लाइफ, आपके घराने चेंज होनी शुरू से। आइए हम दुआ करें।